Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस और साथ ही साथ देखा था फोर्सेस क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। वैसे कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ थी, लेकिन न्यूटन ने पहली बार इसको देखा था तो उन्होंने इसको लॉ में अच्छी तरह फॉर्म कर दिया था। ठीक है, so by observing the motion of an object on an inclined plane, Galileo deduced that the object move with constant speed when no force acts on them. He observed that when a marble rolls down in the inclined plane, its velocity increases. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attain a definite velocity by the time. When it climbs up as shown in figure 8.5, frictional plane inclined in both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. If the inclination of the plane on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it had covered while rolling down. If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, that is slope reduced to zero, the marble would continue to travel forever and trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced forces on marble in this case are zero. It thus suggests that an unbalanced external force is required to change the motion of a marble, but no net force is needed to sustain uniform motion of the marble. In the practical situations, it is difficult to achieve zero unbalanced forces. This is because the presence of frictional force acting opposite the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using smooth marble as smooth plane and providing lubricant on the top of the planes. तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने जो है आपको एक एग्जांपल समझाया है जो कि गैलीलियो जो थे साइंटिस्ट उन्होंने नोटिस किया था। एक इंक्लाइन प्लेन डियर स्टूडेंट हम लोग लेते हैं, जब हम कोई बॉल को उसमें नीचे फेंकते हैं तो आपने देखा होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होते रहती है ना। और जब आप कोई बॉल को सपोज़ मान लो आप कोई इंक्लाइन प्लेन से उसे फेंक रहे हो तो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी बिल्कुल उसी हाइट में जहाँ वो पहले थी, है ना। इस तरह आप उसे मारोगे, इसी तरह आप लोग बॉल को मारोगे। जब आप पूरे प्लेन को हॉरिजॉन्टल यानी कि पूरा प्लेन कर दोगे तो आप देखोगे बॉल तो मूव होते ही जाएगी। इसमें गैलीलियो समझाना क्या चाहते हैं, ये इसमें सिर्फ गैलीलियो इतना समझाना चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत होती है। बैलेंस फोर्स में आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो मोशन से रेस्ट में आ सकता है, ना ही रेस्ट से मोशन में जा सकता है। ठीक है, आपको अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, Newton further studied Galileo's idea on the force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of an object. These three laws are known as Newton's laws of motion. The first law of motion stands. तो डियर अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि आखिर ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या डिस्क्राइब करता है। तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है डियर इसको आप लोग इस एग्जाम्पल से समझो। इनका एग्जाम्पल बड़ा बेकार है, मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये देखो सपोज़ मान लो ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप हो। ठीक है, आपने क्या करा, आपने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से आपका फ्रेंड आया एक जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसने भी इधर से 5 न्यूटन का फोर्स ही लगा दिया। ठीक है, क्या ये बॉक्स अब मूव होगा? ये सब प्रीवियस वीडियो में हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। क्या ये बॉक्स अब मूव होगा डियर स्टूडेंट? ऑब्वियसली बात है, बॉक्स अब मूव नहीं होगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा इस बॉक्स का, हो जाएगा 5 + -5। मैंने ये भी बताया था कि इस डायरेक्शन में फोर्स नेगेटिव हो जाता है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि अब ये जो चीज़ है पूरी ये बन चुकी है बैलेंस, तो ये बॉक्स जो है मूव नहीं हो पाएगा। और गैलीलियो और न्यूटन का ये कहना है
कि जब हम लोग अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट में, तभी वो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो पाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे क्या करा आपका फ्रेंड अब जो था वो भी इधर ही आ गया। ठीक है, वो भी इधर ही आ गया, दोनों ने मिलकर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, टोटल फोर्स हो गई 10 न्यूटन। और इधर से सपोज़ मान लो कोई एक बंदा है, वो इधर से आ गया और उसने इधर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो अब क्या होगा, अब बॉक्स आपका इसी तरफ को मूव करेगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी इस पूरे सिनेरियो की, इस रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 10 प्लस -5, जो कि हो जाएगा 5 टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, है ना डियर स्टूडेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ को मूव कराने के लिए, या फिर अगर हमें कोई भी चीज़ को रेस्ट में भी लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या हमें अप्लाई करनी पड़ेगी अनबैलेंस फोर्स। चलो ये तो थी वाली बात जब हमें अपना कोई बॉक्स मूव कराना। और जैसे एक और बात ये है कि फोर्स जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डायरेक्शन की गड़बड़ी से हर चीज़ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव में अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर करने दी है कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो है हम लोग देखते हैं, वो चीज़ ये है कि अभी तो बात की गई थी कि बॉक्स मोशन में, सपोज़ मान लो आपको बॉक्स को या बॉल मूव हो रही है, सपोज़ मान लो बॉल मूव हो रही है, बॉल को आपको रेस्ट में लाना है, तो आप क्या करोगे, आप इधर से कोई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे जो कि आपकी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो, ताकि बॉक्स रुक जाए, है ना। जैसे यहाँ पे सपोज़ एग्जांपल मैं बॉक्स का लेती हूँ, ये बॉक्स है, ये मूव कर रहा है इधर कंटिन्यूसली, आपने इधर अप्लाई करी थी 5 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी थी और ये बॉक्स कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा था। अब आपको इस बॉक्स को रोकना है ना, तो आप लोग क्या करोगे इस बॉक्स को रोकने के लिए, बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। या फिर अगर आपको इस बॉक्स को अब या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है, तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन की फोर्स को बढ़ा दोगे, है ना, या 7 न्यूटन हो गया। तो जब आप इसको निकालोगे इसकी रिजल्टेंट फोर्स, तो आपको मिल जाएगी -2 न्यूटन, जो कि होगी टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, है ना। तो डियर इससे हमें साफ पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोशन में लाना है, तो हमें अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इस चीज़ के, जब भी हम बिना कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा रेस्ट में ही रहता है। अब एक मेरे को बात बताओ, आपको अपने टेबल से कॉपी किताब लानी है, या फिर कुछ भी लाना है, कॉपी लानी है आपको, कोई भी सपोज मान लो आपको साइंस की बुक लानी है, तो क्या कैसे लाओगे आप अपनी साइंस की बुक, ऐसे ही जादू टोना करके तो साइंस की बुक आएगी नहीं, आपको साइंस की बुक को उठाना पड़ेगा, है ना। तब तक आपकी साइंस की बुक रेस्ट में ही रहेगी, जब तक आप उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, है ना। जब तक आप उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो जो बुक है आपकी, ना तो वो मोशन में आ सकती है, ना ही वो रेस्ट में आ सकती है ना। तो डियर यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, और यही चीज़ न्यूटन ने भी कही है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or in the uniform motion in the straight line unless it is compelled to the change that state by an applied force। यानी कि तब तक हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना तो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, ना ही मोशन से रेस्ट में आ सकता है। और कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं, अनबैलेंस फोर्स। बिना अनबैलेंस फोर्स के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही चीज़ न्यूटन ने जो है लॉ में मेंशन करके दे दी। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये सबको पता था, अगर हम लोग देखें तो हमें भी पता है, लेकिन न्यूटन ने सबसे पहले देखी, इसलिए उसने लॉ फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो देखो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड टू द चेंज दैट स्टेट बाय द अप्लाइड फोर्स। इन अदर वर्ड्स, ऑल द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज in their state of motion. In a qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. अब डियर स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया जो है बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग यहाँ पे देखोगे अभी इनर्शिया का आपका फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है, जो कि इनर्शिया एंड मास, इसमें हम लोग और भी देखेंगे। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो है हमेशा क्या करता है, हमेशा ट्राई करता है कि रेजिस्ट करने को। हम लोग कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, वो थोड़ी देर रेजिस्ट करता है, जब उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है तब वो मूव करता है ना डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट हमेशा ट्राई करता है कि वो रेजिस्ट करे चेंज को, वो हमेशा रेजिस्ट करता है मोशन में आने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में आने के लिए।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। जब आप बस में बैठे रहते हो डियर स्टूडेंट, बस में आपने देखा होगा, सपोज मान लो ये आपकी बस है, स्कूल बस। इनर्शिया भी समझा ही देते हैं आज आपको, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट, सपोज ये आपकी स्कूल बस है और यहाँ पे आप लोग खड़े, यहाँ पे आप खड़े हो कुछ इस तरह, ठीक है, ये ठीक है, ये इस तरह आप लोग खड़े हो, ठीक है। तो आप देखो डियर स्टूडेंट क्या आया, एक बस स्टॉप आया, थोड़े बच्चे चले, आप भी रेस्ट में थे, बस के साथ आप भी रेस्ट में थे, थोड़े बच्चे आ रहे थे, ठीक है। तो आप क्या करा, बस चल गई, फिर से चल गई बस। तो अब जब बस चल जाती है तो आपका कौन सा पार्ट बॉडी का ऐसा है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है बस के, वो है आपके पैर। आपके पैर बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो क्या होगा, जब बस चलेगी तो आपके पैर भी बस के साथ साथ आगे आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके आगे आगे जाएंगे, और आपकी जो अपर पार्ट है बॉडी वो जो है पीछे को जाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा जब आपकी बस जो है रेस्ट में होती है और अचानक से चलती है तो आपको पीछे को झटका लगता है ना। वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपकी अपर बॉडी चेंज को रेजिस्ट करती है, वो नहीं चाहती कि भाई वो अपनी स्टेट चेंज करके मोशन में आ जाए। और इसी रेजिस्ट की वजह से, इसी लेजीपन की वजह से क्या होता है, आपको पीछे को झटका लगता है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप सीधे आते हो और फिर अच्छी तरह से आप सीधे होते हो और फिर आप लोग फिर से मोशन में आ जाते हो, है ना निश्चय। यही चीज़ इसकी अपोजिट देखी जाए तो आपने देखा होगा, जब आपकी गाड़ी मोशन में होती है, आपका सब चीज़ मोशन में होता है, अचानक से आपके जो बस अंकल हैं कुछ भी, उन्होंने ब्रेक मार दिया, है ना। शायद कोई आ रहा होगा, कोई और बच्चा, तो उसने क्या, उन्होंने ब्रेक मारा, तो क्या हुआ, आपका कौन सा पार्ट था जो बस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, पैर थे, है ना, ये आपका लोअर बॉडी। तो वो क्या हुआ, लोअर बॉडी तो रेस्ट में आ गई, लेकिन आपकी अपर बॉडी को क्या पता, वो बेचारी जो है अभी मोशन में चली जा रही थी। तो अपर बॉडी आपकी रेजिस्ट करती है रेस्ट में आने को, है ना, रेस्ट में आने को रेजिस्ट करती है। तो इस रेजिस्ट की वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको जो है आगे को झटका लगता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आपके जो है मतलब ब्रेक मारे जाते हैं तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो तो रेस्ट में आ जाती है ना। लेकिन आपकी अपर बॉडी क्या करती है, अपर बॉडी को आगे की साइड जो है झटका लग जाता है जब ब्रेक आते हैं, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको बेंड होते हो आप, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बस सिंपल सी चीज़ है कि टेंडेंसी ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी स्टेट में चेंज को हमेशा रेजिस्ट करता है, वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेट चेंज हो। वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, है ना। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये चीज़ डिस्टन आप लोग समझ में आ रही होगी इनर्शिया क्या है। अभी डिस्टन आप लोग नए नए हो इस चीज़ में, तो मे भी आपको थोड़े डाउट पैदा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऑल अबाउट एनसीईआरटी से आप पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अभी तो और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इस चीज़ के, ठीक है। अभी इतना ही नहीं है, अभी और भी एग्जाम्पल्स हम इस चीज़ का देखेंगे, ठीक है। That is why first law of motion is also known as law of inertia, ठीक है। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू कीप इन रेस्ट या फिर कीप मूविंग, ठीक है। मतलब वो ये चाहते हैं कि उनको जो है अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाहिए, वो रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहते हैं और मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहते। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल बताए बस वाले। जब आपकी बस मोशन में होती है, अचानक से ड्राइवर अंकल ने ब्रेक मारा, तो क्या होता है, आपकी लोअर पार्ट जो बॉडी होती है वो जो है बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो वो तो रेस्ट में आ जाती है। बट आपकी अपर बॉडी रेस्ट में नहीं आती है, वो अभी भी मोशन में ही रहती है, तो उसको तभी आगे को आपको झटका लगता है ना। उसके बाद आपको आप जो है फिर से अच्छी तरह अलाइन होते हो और फिर अच्छी तरह अपनी बॉडी के साथ फिर से रेस्ट में आ जाते हो, है ना टीचर। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इनर्शिया के, है ना। Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia. We tend to remain at rest with respect to seat until the driver applies braking force to stop motor car. With the application of brakes, the car slow down, but our body tends to continue with the same state in motion because of inertia. A sudden application of brake may thus cause an injury to us by impact of collision with the panels in front, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, इनर्शिया का एक और चीज़, ये चीज़ डियर स्टूडेंट कि आपने देखा होगा इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया की वजह से जो है इनर्शिया कहीं ना कहीं क्योंकि इनर्शिया से बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, है ना, इसलिए आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड करी जाती है। सपोज़ मान लो यहाँ पे 2 ड्राइवर्स हैं, एक यहाँ पे आपका है ड्राइवर 1, मेरी ड्राइंग डियर स्टूडेंट भी अच्छी नहीं है तो इसलिए आप ड्राइंग को मत देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए एक कार है, ठीक है, ये हमने एक कार बनाई। अब देखो यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे आप बैठे हो, शायद आप नहीं, सपोज़ मान लो कोई ड्राइवर है, ठीक है, वो यहाँ बैठा है और उसने अच्छी तरह से जो है सीट बेल्ट लगाई है।
तो अब क्या हुआ, अब उसको अचानक से ब्रेक मारना पड़ा। सपोज़ मान लो बाहर ट्रैफिक है या अचानक से कोई गाड़ी आगे से आ गई, ठीक है, तो उसने ब्रेक मारा। तो ब्रेक मारने से क्या हुआ, उसको झटका लगा, वो आगे को गया, लेकिन उसको सीट बेल्ट ने रोक लिया। उसको जर्क फील हुआ, वो आगे को गया, बट उसकी सीट बेल्ट ने उसको रोक लिया, तो उसको बचा लिया। लेकिन सपोज़ मान लो इधर एक ड्राइवर है, ठीक है, इधर एक ड्राइवर है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, वो भी गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज़ मान लो उसको ब्रेक लगाना पड़ा, आगे से बहुत ट्रैफिक आ गया, कुछ भी हुआ है ना, जो भी हुआ, ठीक है, उसको ब्रेक मारना पड़ा और रेस्ट में आया, तो उसको अचानक से झटका लगा, और जब झटका लगा वो आगे को जब गया, तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जब वो आगे को गया तो उसका जो है गर्दन सीधा सीधा शीशा तोड़ के बाहर आ गई, है ना। ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा, जब एक्सीडेंट या कुछ होता है, जब हम सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते तो ये सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जर्क जो हमें फील होता है वो हमारा एक्सीडेंट भी करवा सकता है, इसलिए डियर स्टूडेंट सीट बेल्ट लगाई जाती है, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इनर्शिया से एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो कोलिशन या कभी ये सारी चीज़ें होती हैं तो सेफ्टी बेल्ट हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक फॉरवर्ड्स मोशन स्लोअर। तो इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब इनर्शिया हुआ, जब आपको आगे को झटका लगा, तो सेफ्टी बेल्ट क्या करती है, आपको पीछे को खींच लेती है। सेफ्टी बेल्ट जब फोर्स एक्सर्ट करती है वो आपको पीछे को खींच लेती है और आप फिर से अपनी सीट पर वापस आ जाते हो, है, तो इससे आपका एक्सीडेंट बच जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बेसिकली। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एन अपोजिट एक्सपीरियंस इन एनकाउंटर्ड वाइल वी स्टैंडिंग इन अ बस एंड बस बिगेन्स टू मूव सडनली, नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स। This is because sudden start of bus brings the motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus. But the rest of our body opposes this motion because of inertia. देखो, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारी अपर पार्ट है बॉडी की वो रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, यही न्यू इनर्शिया में डिस्टेंस बताया गया है। इनर्शिया में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमेशा अपनी स्टेट को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वो आज रेस्ट में तो मोशन में नहीं आना चाहेगा, वो मोशन में तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। जैसे अगर आपकी बॉडी, अगर आप बस में चल रहे हो बिल्कुल मस्त था, मोशन में हो, अचानक से ड्राइवर अंकल ने ब्रेक मार लिया, आपके पैर तो बिल्कुल ज़मीन में है, तो पैरों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी अपर पार्ट ऑफ बॉडी मोशन में ही है, और वो रेजिस्ट करने की कोशिश करती है कि नहीं, हमें मोशन से रेस्ट में नहीं आना। और उसका अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या होता है, हम लोग आगे को गिर जाते हैं ना। तो फिर आप अपनी बॉडी को फिर से अलाइनमेंट करते हो और अच्छी तरह आते हो अपनी पोजीशन में फिर से, और फिर से आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाती है ना। तो यही चीज़ उन्होंने बता रखी है। व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न इन हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन इन टू वन साइड। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया। तो जैसे ऐसे आपने देखा होगा, जब आप बहुत टर्न मारते हो तो क्या होता है, आप लोग साइड को जाते हो, है ना, कभी लेफ्ट साइड को जाते हो जब टर्न मारते हो, है ना, आपने देखा होगा, ये भी इनर्शिया की वजह से ही है। तो जैसे सारी चीज़ जो आपको जर्क फील हो रहा है, जो आप ऐसी चीज़ कर रहे हो, ये सब इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट एंड टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे मोशन से वो रेस्ट में नहीं आ जाता, रेस्ट में मोशन में नहीं आता। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह डिस्कशन ये एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको इनर्शिया में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है, वी टेंड टू कंटिन्यू इन आर स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड बाय एन इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मोटर कार वी स्लिप्ड वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आर बॉडी। तो ये भी इनर्शिया की वजह से ही होता है। द फैक्ट दैट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन द अनबैलेंस फोर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब बहुत सारी इन्होंने एक्टिविटीज़ भी दी है जिससे ये इलस्ट्रेट हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो है रेस्ट से आप मोशन में तभी आ सकते हो जब आप उन्हें अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करी। बेसिकली न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में ही रहेगा या मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। ये है न्यूटन का पहला लॉ, और ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल बताया, बिना अनबैलेंस फोर्स के आप लोग रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकते और मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकते, है ना। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर कर दी थी, अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट में भी क्लियर करी थी। आज का जो टॉपिक है इसमें भी मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर कर दी, ठीक है। आपकी बुक से ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल दिए मैंने आपको बॉक्स वाला, जिससे आप इजीली समझ लो, है ना, क्योंकि आपकी बुक वाले डिफिकल्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक केस स्टडी है जो कि गैलीलियो गैलीली वॉज बॉर्न ऑन 15 फरवरी 1564 एंड इन पिज़ा इटली
Galileo, right from his childhood, had interest in mathematics and natural philosophy, but his father, Vincenzo Galilei, wanted him to become medical doctor. Accordingly, Galileo enrolled himself in the medical degree in University of Pisa in 1581, which he never completed because of his real interest in mathematics. In 1586, he wrote his first scientific book, The Little Barons, ठीक है, in which he described Archimedes' method of finding relative densities or specific gravities on the of substances using balance. In 1589, the series of essays De Motu he presented in his theory about falling objects using inclined plane to slow down the rate of descent. In 1592, he was appointed professor of mathematics in University of Padua in Republic of Venice. He continued his observation on the theory of motion, and through study of inclined plane and pendulum, formulated the correct law of uniformly accelerated motion, that distance of the object moves is proportional to the square of time taken. Galileo was also a remarkable craftsman. He developed a series of telescopes which optical performance was much better than that of other telescope available during those days. Around 1640, he designed the first pendulum clock. In his book Starry Messenger on his astronomical discoveries, Galileo claimed to have seen many mountains on the moon. The Milky Way was made up of tiny stars and four small bodies orbiting Jupiter, and letters on the sunspot. He disclosed the observation of sunspots. ठीक है, उसका यूजिंग हिज ओन टेलीस्कोप्स थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन ऑन सैटर्न एंड वीनस, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट ऑल प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द सन एंड नॉट द अर्थ, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वाज बिलीव्ड एट दैट टाइम. तो डिस्टर इसमें बस इतना बताया गया कि गैलीलियो जो थे उनका बचपन से इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, बट उनके जो पापा थे वो चाहते थे कि वो मेडिकल डिग्री लेके डॉक्टर वगैरह बने, लेकिन क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें था मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने वो अच्छी तरह पूरा नहीं करा. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे एसेस लिखे, जिन्होंने उसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की थी, साइंटिफिक चीज़ें बताई थी, है ना. इसमें तो यही सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. वो बहुत अच्छे क्राफ्टमैन भी थे, प्रोफेसर उनको बना दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ केस स्टडी है, ये वैसे एग्जाम्स में आती नहीं है इतना, नहीं कभी कभार जो है थ्योरी भी पूछ देते हैं वो वन वर्ड आंसर्स वगैरह में, तो इसलिए आप इसे पढ़ लेना, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें दिया गया है सिमिलर, अब आपने देखा होगा कैरम बोर्ड जो होता है हमारे पास, वो कैरम बोर्ड होता है, तो उसमें भी आपने खेला होगा. कैरम बोर्ड में जो है हम लोग पाउडर वगैरह डालते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए. तो यही सारी एक्टिविटीज़ बता रखी हैं इन्होंने. अटेम्प्ट द शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग द अनदर कैरम कॉइन ऑन द स्ट्राइकर. If the hit is strong enough, the bottom coin moves out quickly. Once the lowest coin is removed, the inertia of other coins makes them fall vertically on the table. अरे डी स्टूडेंट, बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ है. आपको सारे कॉइन्स को स्टेप बाय स्टेप ऊपर स्ट्रक करना है. तो आप लोग देखोगे कि अगर आप बहुत जोर का हिट मारते हो और आपने बॉटम कॉइन अगर रिमूव कर दिया, तो इससे क्या होता है, जो अगर आपका बॉटम कॉइन जो है डी स्टूडेंट रिमूव हो जाएगा क्विकली, तो डी स्टूडेंट जब बॉटम कॉइन आपका रिमूव हो जाएगा, तो जो बाकी कॉइन्स हैं वो जो है क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वर्टिकली जो है टेबल में गिर जाएंगे, है ना डी स्टूडेंट. तो इससे भी आप लोग इनर्शिया को देख सकते हो. तो इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ये एग्जांपल्स नहीं है, मैं आपको एक और एग्जांपल बनाऊंगी जो इन्होंने बहुत अच्छा बता रखा है. ये गिलास वाला डी स्टूडेंट, ये वाला एग्जाम्पल देखो आप. तो इसमें क्या होता है, आप लोग एक कॉइन रखो ऊपर टेबल में, ठीक है. कॉइन रखो, एक छोटा सा, मतलब वो नहीं आता टेबल में जो कप रखने के लिए मिलता है आपको, वो डाइनिंग टेबल में जब आप बैठते हो तो आप जो कार्ड में लगा के खाना खाते हो, तो उसके साथ एक छोटे छोटे वाले मिलते हैं वो कार्ड, जिसमें आप लोग अपने गिलास रखते हो या फिर कप वगैरह रखते हो, ठीक है. तो वो लेना है आपको, और उनमें जो है आपको क्या करना है, आपको रखना है ऊपर से कॉइन, ठीक है. अब आप क्या करोगे, अगर आप क्विकली जो है कार्ड को जो है हटा दोगे, तो आप देखोगे कॉइन नीचे गिर जाएगा, आपके कार्ड के साथ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपने कार्ड को तो मोशन में ला दिया, ठीक है, जो आपने ऊपर से लगाया था, लेकिन आपका कॉइन का जो सपोर्ट था, जो कार्ड सपोर्ट दे रहा था कॉइन को, वो तो हट गया. तो अब कॉइन क्या करेगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कॉइन रेजिस्ट कर रहा था. कॉइन जो है कार्ड के साथ मूव नहीं हुआ,
कॉइन रेजिस्ट करा चेंज, मोशन रेस्ट से मोशन में आने में, इसलिए वो क्या हुआ, वो अल्टीमेटली नीचे गिर गया। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कारपेट आपने देखा होगा, है ना, कारपेट को जब आप बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हो, जो बहुत गंदा कारपेट होता है, इसमें धूल मिट्टी निकालने के लिए ज़ोर से मारते हो, पीछे जाता है और सारी डस्ट नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये कारपेट तो डिस्टेंट मोशन में आ गया, कारपेट पीछे चले गया, मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या पता, वो तो बेचारे रेस्ट में थे। तो जैसे ही कारपेट पीछे गया, डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर गए या फिर उस कारपेट से सेपरेट हो गए। तो ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, यही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। नेक्स्ट डिस्टर आपने क्या कहते हैं, बहुत वैसे तो इनर्शिया के डिस्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कारपेट वगैरह वाले, जो आपकी बुक ने भी दे रखे हैं, और थोड़े एग्जाम्पल और भी हैं बहुत अच्छे। जैसे आपने देखा होगा ट्रंक जो होती है ट्री की, उसमें बहुत सारी सूखी पत्तियाँ होती हैं और कुछ अच्छी पत्तियाँ होती हैं जो हरी हरी होती हैं, और कुछ फल होते हैं जो कि मतलब टूटने ही वाले होते हैं, कि मतलब कहीं ना कहीं डिटैच होने वाले होते हैं। तो जब आप ट्रंक हिलाते हो पेड़ की बहुत तेज तेज, तो किससे क्या होता है डिस्टर, आपका जो ट्रंक है, पूरा ट्री जो है वो मोशन में आ जाता है, पर जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ, उन वो जो है बेचारी जो है क्या होती हैं, वो बेचारी जो वो तो रेस्ट में ही होती हैं। तो इसमें क्या होता है, वो पत्तियाँ जो है जब ट्री मोशन में आ जाता है, वो रेजिस्ट करती हैं चेंज को, वो मोशन में नहीं आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो है नीचे गिर जाती हैं बहुत सारी पत्तियाँ। तो ये भी इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगले वीडियो में डिस्टर हम लोग क्या करेंगे, इनर्शिया और मास को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा डिस्टर, इनर्शिया और मास को हम लोग रिलेट करेंगे और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने समझा इनर्शिया और साथ ही साथ हमने समझा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनर्शिया और मास के बीच रिलेशनशिप, और साथ ही साथ जो है हम लोग कुछ इंटेक्स क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।